آج 15 شعبان کی وہ عظیم رات اور منگل کا مبارک دن ایک ساتھ آ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، ایسا مبارک اتفاق پرسوں بعد ہوتا ہے جب تقدیر بدلنے والی رات اور منگل کا دن ایک ساتھ مل جائیں۔ آج چاول کے صرف 21 دانوں پر سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی انشاءاللہ رزق اور دولت آپ کے گھر میں آسمان پھاڑ کر نازل ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 15 شعبان یعنی شب برات کی رات اور منگل کے اس مبارک دن جو بندہ یہ وظیفہ اپنے گھر میں بیٹھ کر لیتا ہے وہ پورا سال رزق کی نعمتوں سے مالا مال رہتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی، دکھوں، غموں اور تکلیفوں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے جو پورے سال میں صرف ایک بار یعنی آج کی رات ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑی شرط ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جھولی بھی خوشیوں سے بھر جائے تو آپ کو یہ وظیفہ شروع سے لے کر آخر تک بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہوگا جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی یا ویڈیو کا کوئی بھی حصہ کاٹ کر دیکھا تو یاد رکھیں یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور لاپرواہی میں یہ موقع اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورے سال کے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شعبان کے پچھلے دن غفلت اور لاپرواہی میں گزار دیے ہوں، لیکن یاد رکھیں آج 15 شعبان کی وہ عظیم الشان رات ہے جہاں توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ آج منگل اور بدھ کی درمیانی رات ہے جو قبولیت کی رات ہے، اور آج ہی وہ رات ہے جب چاول کے ان 21 دانوں پر کی گئی آپ کی پکار اللہ کے عرش تک جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور آج روزگار کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو میرا رب آپ کے لیے غیب سے ایسے راستے کھولے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کریں، کیونکہ اب میں آپ کو وہ طریقہ بتانے لگا ہوں جو آپ کی تقدیر بدل دے گا انشاءاللہ۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ آپ کے کچن میں موجود چاول کے صرف 21 دانے آپ کی تقدیر کے بند تالوں کی چابی بن سکتے ہیں؟ لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، پیروں فقیروں کے چکر کاٹتے ہیں کہ شاید کہیں سے ان کی قسمت بدل جائے، لیکن وہ اس عظیم روحانی راز سے بے خبر ہے جو چاول کے ان ننھے سے دانوں میں چھپا ہوا ہے۔ آج شب برات کی وہ خاص رات ہے جب رزق کے فیصلے زمین پر اتارے جاتے ہیں۔ اگر آپ آج کی رات چاول کے ان 21 دانوں پر وہ عمل کر لیتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی رزق کے لیے ترسیں گی نہیں۔ دوستو یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ وہ سچا عمل ہے جس نے فقیروں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے۔ اگر آپ تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا تو بس آج کی رات یہ 21 دانے اٹھا لیں اور پھر اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ دیکھیں جس کا دنیا صرف خواب دیکھتی ہے۔ اب دوستو ذرا رکیں، اس سے پہلے میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں میری ایک بات کان کھول کر سن لیں۔ یوٹیوب پر آپ کو ہزاروں ویڈیوز ملیں گی، لیکن جو باریکی اور جو روحانی کڑی میں آج آپ کو دینے والا ہوں وہ کوئی نہیں بتائے گا۔ اکثر لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں ہوتا، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ان 21 دانوں کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو صرف وظیفے کا طریقہ نہیں بتاؤں گا بلکہ یہ بتاؤں گا کہ ان 21 دانوں کو کس وقت اٹھانا ہے، ان کا رخ کس طرف ہونا چاہیے اور آپ کے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں شب برات کا ایک ایک لمحہ کروڑوں کا ہے، اور اگر آپ نے ویڈیو کا ایک حصہ بھی سکپ کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ وہ خفیہ لفظ مس کر دیں جس کے بغیر یہ 21 دانے صرف چاول ہی رہیں گے، معجزہ نہیں بنیں گے۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اپنی تنگی دور کرنے کے لیے، اپنی عزت رفتہ بحال کرنے کے لیے اور اپنی بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے تو اس ویڈیو کو آخری سیکنڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ آج کی رات آپ کی زندگی کی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آئیے اپنے گناہوں کا بوجھ اتارنے کے لیے اس پاک پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہ شب برات کی وہ گھڑی ہے جب رب کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں ہاتھ اٹھا لیں اور دل سے آمین کہیے۔ کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار لگ جائے۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے والے پروردگار، ہم تیرے گناہ گار اور خطا کار بندے آج 15 شعبان کی اس مقدس رات میں تیرے سامنے جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ مولا ہمارے گناہ پہاڑوں سے بھی اونچے ہیں، ہماری خطائیں سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں، لیکن تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ آج کی رات ہمارے نصیب سے محرومیوں کو مٹا دے۔ یا باری تعالیٰ، جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، مولا ان چاول کے 21 دانوں کے اس عمل کی برکت سے ان کے رزق میں اتنی وسعت عطا کر کہ وہ لینے والے سے دینے والے بن جائیں۔ اے اللہ، جن بہنوں کے نصیب بند ہیں ان کے نصیب کھول دے، جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے ان کی گود کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔
اے मालिक दो जहां, आज रात जब तू तकदीर के फैसले फरमा रहा है तो हमारा नाम भी खुश नसीबों में लिख दे, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी परेशानियों को राहतों में बदल दे। या अल्लाह, हमें मुआशरे में वो इज्जत अता कर कि हमें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हमारी इस इज्तिमाई दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। जो आमीन कमेंट्स में लिख रहे हैं या दिल से कह रहे हैं, उनकी हर जायज मुराद पूरी फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा। मेरे भाइयों, अब जबकि हमने अपना मुकद्दमा अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया है, तो अब वक्त ज़ाया किए बगैर इस 21 दानों वाले अमल की तरफ चलते हैं। याद रखिए, ये अमल आपकी इसी दुआ की कबूलियत की चाबी है। अगर आपने दुआ मांग ली है तो अब इस अमल को पूरे यकीन के साथ देखें, क्योंकि अब मैं वो तरीका बताने लगा हूँ जो आपकी तकदीर के बंद दरवाजों पर दस्तक देगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब वक्त आ गया है उस पहले अमल का जो आपकी जिंदगी की बुनियाद बदल देगा। याद रखिए, शब बारात की इस रात में जब आपके सामने चावल के वो 21 दाने रखे होंगे, तो आपने सबसे पहले उस कलमे की ज़रब लगानी है जिसने पूरी दुनिया का निज़ाम बदला है। वो है पहला कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, रिस्क नहीं मिल रहा, दरवाजे बंद हैं। अरे भाई, जब तक आप उस कायनात के मालिक की तौहीद का इकरार सच्चे दिल से नहीं करेंगे, तब तक बरकत कैसे आएगी। ये कलमा सिर्फ जुबान से पढ़ने के लिए नहीं है, ये अल्लाह से वो वादा है कि या अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू ही है जो इन 21 दानों को मेरे लिए रिस्क के अंबार बना सकता है। क्या आप जानते हैं कि ये कलमा पढ़ते वक्त आपके दिल की कैफियत क्या होनी चाहिए? अगर ये ना हुआ तो अमल अधूरा है। देखें, वजीफा तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन असर किसी किसी को होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इसकी रूह को नहीं जानते। आज की रात जब आप मुसल्ले पर बैठेंगे तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं सिर्फ तस्बीह पढ़ रहा हूँ, बल्कि आपने ये सोचना है कि मैं अपने रब से अपनी तकदीर का सौदा कर रहा हूँ। एक एक लफ्ज में वो तड़प होनी चाहिए कि अर्श वाले को भी आप पर प्यार आ जाए। तारीख का एक बहुत ही सच्चा और ईमान अफरोज वाक़या सुने जो आपके अंदर यकीन पैदा कर देगा। एक बहुत ही गरीब किसान था जिसके पास न बीज था, न हल चलाने के लिए बैल। वो इतना मजबूर था कि उसके पास चावल के सिर्फ चंद दाने बच गए थे जो उसके बच्चों का आखिरी खाना था। वो शख्स एक अल्लाह वाले के पास गया और उसे अपनी हालत जार सुनाई। उन बुजुर्ग ने फरमाया कि बेटा, ये दाने अपने सामने रखो और पूरे यकीन के साथ पहला कलमा पढ़ना शुरू कर दो, यहाँ तक कि तुम्हारा दिल गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं। उस किसान ने वही किया। वो रात भर रो रो कर कलमा पढ़ता रहा। सुबह हुई तो उसके दरवाजे पर एक अजनबी आया जिसने उसे बताया कि तुम्हारे चचा का इंतकाल हो गया है और उन्होंने अपनी तमाम जायदाद और खेत तुम्हारे नाम कर दिए हैं। सुभान अल्लाह, वो कलमा जो उसने उस रात पढ़ा था, उसने रातों रात उसे गरीब से जमींदार बना दिया। दोस्तों, ये है पहले कलमे की वो ताकत जो मिट्टी को सोना बना देती है। पहले कलमे की अहमियत और क्यों जरूरी है। आज शब बारात की इस रात चावल के इन 21 दानों के सामने बैठकर ये कलमा पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके रिस्क को पाक करता है। हम जिंदगी भर हराम हलाल की तमीज नहीं कर पाते, गुनाहों की वजह से रिस्क में नहूसत आ जाती है। ये कलमा उस नहूसत को जलाकर राख कर देता है। जब आप पहला कलमा पढ़ते हैं तो अल्लाह की रहमत आपके घर का पहरा देती है। ये वो किला है जिसमें दाखिल होने वाला कभी भूखा नहीं मरता, कभी जलील नहीं होता। अब इसकी तादाद और तरीका बहुत गौर से सुन लें ताकि कोई भी गलती ना हो। आपने इन 21 दानों के सामने बैठना है और अपनी नीयत में सिर्फ अल्लाह की रजा रखनी है। आपने इस मुबारक रात में कुल 2000 मरतबा पहला कलमा मुकम्मल करना है। लेकिन अगर आपको लगे कि वक्त कम है या आपकी हिम्मत जवाब दे रही है तो कम से कम 20 मरतबा इसे इस तरह पढ़ें कि हर बार ला इलाहा इल्लल्लाह पर सांस लें और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अपने सीने पर फूंक मारें। ये तादाद आपके वजूद में वो नूर भर देगी कि आपकी मांगी हुई हर दुआ जो आपने उससे पहले इज्तिमाई दुआ में मांगी है वो कबूलियत की मंजिल पा लेगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, पहले कलमे की ज़रब लगाने के बाद अब हम उस अमल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बगैर कायनात का कोई भी वजीफा अधूरा है। आज शब बारात की वो अजीम रात है जहां अल्लाह पाक अपने बंदों की तकदीरों के फैसले फरमाता है। लेकिन याद रखें, अल्लाह की बारगाह का एक असूल है, जब तक उसके महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजा जाए, दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है। आज आपके सामने चावल के वो 21 दाने रखे हैं। ये दाने गवाह बन रहे हैं कि आप अल्लाह के जिक्र में बैठे हैं। लेकिन उन दानों में बरकत तब आएगी जब आपकी जुबान से दरूद पाक की वो खुशबू निकलेगी। दरूद इब्राहिमी वो कलाम है जो अर्श वाले को सबसे ज्यादा पसंद है। शब बारात की उस तन्हाई में जब पूरी दुनिया सो रही हो और आप मुसल्ले पर बैठकर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेंगे
तो यकीन जानिए फरिश्तों की जमातें आपके गिर्द इकट्ठी हो जाएंगी। आपकी इज्जत, आपकी शोहरत और आपकी कामयाबी का रास्ता उसी दरूद से होकर गुजरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दरूद पढ़ते वक्त फरिश्ते आपका नाम कहाँ लेते हैं? अब जरा रुकें और मेरी बात तवज्जो से सुनें। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम दरूद पढ़ते हैं लेकिन जिंदगी नहीं बदल रही। अरे भाई, दरूद पढ़ना सिर्फ अल्फाज दोहराना नहीं है। आज की रात जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपका नाम और आपके वालिद का नाम पेश किया जा रहा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आपको जवाब मिलेगा तो क्या आप समझते हैं कि आपके घर में गुर्बत या परेशानी बाकी रहेगी? हरगिज नहीं। वीडियो एक सेकंड के लिए भी स्किप न करना, क्योंकि अब मैं वो बात बताने लगा हूँ जो आपके दिल की दुनिया बदल देगी। दोस्तों, तारीख का एक निहायत ही सच्चा और मुस्तनद वाक़या जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रिस्क और दौलत के लिए परेशान है। एक शख्स था जो बहुत ज्यादा गरीब था। उसके घर में खाने को कुछ न था। वो शख्स शब बारात की रात रो रो कर दुआएं मांग रहा था। उसने सुना था कि दरूद इब्राहिमी में हर मुश्किल का हल है। उसने उस रात तहज्जुद के वक्त मुसल्ले पर बैठकर दरूद पाक की ऐसी कसरत की कि उसे नींद आ गई। ख्वाब में उसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, तूने मुझ पर इतनी बार दरूद भेजा है कि अल्लाह ने तेरी तमाम परेशानियां खत्म कर दी हैं। जा फलां जगह मिट्टी खोद, वहाँ तेरे बुजुर्गों का दफीना तेरा इंतजार कर रहा है। वो शख्स जब बेदार हुआ और उसने उस जगह को देखा तो वहाँ से उसे इतना माल मिला कि उसकी 7 नस्लें भी उसे खत्म नहीं कर सकी। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है। दरूद पाक की वो सच्ची ताकत है जो इंसान की तकदीर को मिट्टी से उठाकर आसमान पर पहुंचा देती है। ये वजीफा आज की रात क्यों जरूरी है? शब बारात की इस मुबारक रात में जब आपके सामने वो 21 दाने पड़े होंगे तो दरूद इब्राहिमी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी मेहनत को नूर देता है। हम दुनिया में बहुत भाग दौड़ करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती। दरूद इब्राहिमी बरकत का वो समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपको माशरे में वो मकाम मिले कि लोग आपकी मिसाल दें, अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में ऐसी बरकत आए कि आप संभाल न सकें, तो दरूद इब्राहिमी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें। आज की रात दरूद पढ़ने वाले का चेहरा कयामत के दिन 14वीं के चांद की तरह चमकेगा इंशाअल्लाह। अब इसकी तादाद को नोट कर लें और याद रखें कि गिनती में गलती ना हो। शब बारात की इस मुबारक घड़ी में जब आप अपने घर के कोने में बैठे हों तो आपने पूरे अदब और एहतराम के साथ कुल 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी मुकम्मल करना है। आपने अपनी आंखें बंद करनी है, तसव्वुर में मदीना मुनव्वरा को लाना है और चावल के इन 21 दानों को सामने रख कर एक एक लफ्ज को दिल की गहराई से पढ़ना है। ये 100 मरतबा का दरूद आपकी जिंदगी की तमाम रुकावटों को जलाकर राख कर देगा। जब आप ये अमल मुकम्मल करेंगे तो आपको अपने अंदर एक ऐसी सुकून की लहर महसूस होगी जो आपको बता देगी कि आपका अमल कबूल हो चुका है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब हम इस वीडियो के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां दिल टूटते हैं और रब की रहमत जोश में आती है। आज शब बारात है। ये वो रात है जिसके बारे में कहा जाता है कि आज बख्शने वाला पहले आसमान पर आकर पुकारता है। लेकिन जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें, हमारे गुनाहों ने हमारे रिस्क के रास्ते बंद कर रखे हैं। हम कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, हम कहते हैं कि घर में बरकत नहीं। अरे मेरे प्यारे भाई, बरकत कैसे आएगी जब हमारे घरों में गुनाहों की नहुसत छाई हुई है? चावल के ये 21 दाने जो आपके सामने रखे हैं ये गवाह हैं कि आप अल्लाह की चौखट पर आए हैं। लेकिन जब तक आप अस्तगफिरुल्लाह की ज़रब से अपने दिल का जंग नहीं उतारेंगे तब तक ये दाने आपकी तकदीर नहीं बदलेंगे। इस्तगफार सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं है, इस्तगफार तो ताले लगी हुई किस्मत की चाबी है। आज की रात अगर आपने सच्चे दिल से एक बार भी अस्तगफिरुल्लाह कह दिया तो यकीन जानिए कि अर्श पर बैठा रब आपके पिछले तमाम गुनाहों के रजिस्टर फाड़ देगा और आपकी जिंदगी में खुशियों का नया बाब शुरू कर देगा। दोस्तों, क्या आपकी कोई बड़ी हाजत रुकी हुई है? इस्तगफार का ये राज शायद आप नहीं जानते। अब जरा मेरी बात कान खोल कर सुन लें। बहुत से लोग वजीफा पढ़ते हैं लेकिन उनके दिल में दुनिया भरी होती है। आज की रात जब आप इस्तगफार करेंगे तो आपने सिर्फ जुबान नहीं हिलानी बल्कि अपने रब से शर्मिंदा होना है। वीडियो को यहाँ से जरा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ जो आपकी औलाद, आपके माल और आपके सुकून की जमानत बनेगी। इस्तगफार वो अमल है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है और इसका सबूत आपको एक सच्चे वाक़े की सूरत में देता हूँ। एक बुजुर्ग का वाक़या है कि उनके पास एक शख्स आया और कहने लगा कि हजरत, मैं बहुत गरीब हूँ, रिस्क के लिए दुआ करें। उन्होंने फरमाया कि इस्तगफार पढ़ो।
थोड़ी देर बाद दूसरा आया और कहा कि हजरत, शादी को सालों गुजर गए, औलाद नहीं हो रही। उन्होंने फिर फरमाया कसरत से इस्तगफार पढ़ो। एक तीसरा आया और कहा कि हजरत, बारिश नहीं हो रही, कहत पड़ गया है। उन्होंने उसे भी यही कहा कि इस्तगफार पढ़ो। वहां बैठे एक मुरीद ने हैरानी से पूछा कि हजरत, मसाइल अलग अलग हैं लेकिन आपने एक ही हल क्यों बताया? तो उन बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कुरान पाक की वो आयत तिलावत फरमाई जिसका मफहूम है कि अपने रब से इस्तगफार करो, वो तुम पर आसमान से बारिशें बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें जारी कर देगा। सुबहान अल्लाह। मेरे भाइयों, जब कुरान जमानत दे रहा है तो क्या आपको अभी भी शक है? आज की रात चावल के इन 21 दानों के सामने बैठकर जब आप इस्तगफार करेंगे तो आपकी नस्लों की गुर्बत मिट जाएगी और अल्लाह आपको औलादे नरीना से भी नवाजेगा। आज शब बरात की खामोशी में जब हर तरफ सन्नाटा हो तो अपने कमरे के कोने में बैठकर अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ना आपके मुकद्दर को चमका देगा। ये रात तौबा की रात है, ये रात आंसू बहाने की रात है। इस्तगफार पढ़ने वाले के घर में कभी ना इत्तफाकी नहीं होती, मियाँ बीवी के झगड़े खत्म हो जाते हैं और घर का माहौल जन्नत बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपका नाम उन लोगों में लिखा जाए जिन पर अल्लाह का खास फजल हुआ, तो इस्तगफार को अपना हथियार बना लें। अब इस तौबा का तरीका और तादाद बहुत गौर से सुन लें। शब बरात की इस मुबारक रात में आपने पूरे दिल की आजिज़ी के साथ 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। ये 313 की तादाद हक और बातिल के मार्के की तादाद है। जब आप 313 बार अपने रब से माफी मांगेंगे तो आपके अंदर का शैतान मर जाएगा और आपका नसीब जाग जाएगा। इन चावल के 21 दानों को अपने सामने रखें और हर तस्बीह पर यह सोचें कि आपका एक एक गुनाह झड़ रहा है और अल्लाह की रहमत आपको गले लगा रही है। 313 बार मुकम्मल करने के बाद अपने हाथों पर दम करें और अपने चेहरे पर मल लें। आप देखेंगे कि उसी वक्त आपके दिल से बोझ उतर जाएगा और आपकी दुआ अर्श तक पहुंच जाएगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब वक्त आ गया है उस आखिरी और सबसे वजनी अमल का जो आपकी इस पूरी रात की मेहनत का निचोड़ है। हमने कलमा पढ़ा, दरूद भेजा, इस्तगफार किया, अब बारी है अल्लाह की तौहीद का वास्ता देने की। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ये वो सूरह मुबारका है जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान का एक तिहाई हिस्सा है। आज शब बरात की इस खामोश रात में जब आपके सामने चावल के वो 21 दाने रखे हैं तो सूरह इखलास का ये अमल आपकी जिंदगी में वो इनकलाब लाएगा जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो सालों से पूरी नहीं हो रही, अगर कोई ऐसी मुश्किल है जिसने आपकी नींदें उड़ा दी हैं, तो आज अल्लाह को उसकी वहदानियत का वास्ता देकर देखें, अर्श वाला आपकी तकदीर के बंद ताले उसी वक्त खोल देगा इंशाअल्लाह। अब दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा सा वाकया सुने। एक गरीब मजदूर था जो सारा दिन मेहनत करता लेकिन शाम को सिर्फ चंद रुपए घर लाता। वो बहुत परेशान था कि बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। उसे किसी अल्लाह वाले ने सूरह इखलास का ये खास अमल बताया। उसने शब बरात की रात मुसल्ले पर बैठकर पूरे यकीन के साथ ये वजीफा किया। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि उसे एक ऐसी जगह से काम की ऑफर आई जहां उसे उसकी सोच से भी ज्यादा मुआवजा मिला। उसने खुद बताया कि मुझे ऐसा लगता है जैसे सूरह इखलास ने मेरे घर में रिस्क की नहरें जारी कर दी हैं। दोस्तों, ये सूरत आपको किसी का मोहताज नहीं होने देती। अब इस अमल की तादाद और तरीके को बहुत गौर से सुने क्योंकि यहाँ जरा सी भी गलती आपके अमल को मुतासिर कर सकती है। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद पूरे होशो हवास और तवज्जो के साथ 41 मरतबा 41 टाइम्स सूरह इखलास की तिलावत करनी है और आपने इसको मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है और आखिर में दोबारा 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर इस अमल को मुकम्मल करना है। ये 41 की तादाद और अव्वल व आखिर दरूद पाक का पहरा आपकी दुआ को सीधा अल्लाह के हुजूर पेश कर देता है। अब दोस्तों, चावल के इन 21 दानों का क्या करना है, असल राज तो यहाँ छुपा है। मेरे भाइयों, वजीफा तो मुकम्मल हो गया, आपने तस्बीह पढ़ ली, तौबा कर ली, दरूद भेज दिया, लेकिन अब वो सबसे अहम मरहला आ गया है जिसके लिए आपने ये वीडियो शुरू की थी। अब इन चावल के 21 दानों का क्या करना है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वजीफा पढ़कर उठ जाते हैं और असल काम भूल जाते हैं। याद रखें, अगर आपने इन दानों के साथ वो ना किया जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ तो आपकी इस मेहनत का वो असर नहीं होगा जो होना चाहिए था। ये 21 दाने अब सिर्फ चावल नहीं रहे, ये आपकी तकदीर के गवाह बन चुके हैं। अब इन दानों को उठाने का वक्त आ गया है। क्या आप तैयार हैं वो खुफिया तरीका जानने के लिए जो आपकी जिंदगी में बरकतों का तूफान ले आएगा। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मुबारक हो, आपने अल्लाह का जिक्र कर लिया, वज़ाइफ मुकम्मल कर लिए और अब वो लम्हा आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अब इन चावल के 21 दानों का वो खुफिया इस्तेमाल सुने जो आपकी जिंदगी में मौजज़ात का दरवाजा खोलेगा।
देखें ये 21 दाने अब महज चावल नहीं रहे, ये आपकी इस मुबारक रात के इबादत के गवाह बन चुके हैं। अब आपने करना यह है कि इन दानों को निहायत अदब से अपनी हथेली पर रखें। अब इन दानों को लेकर अपने घर की छत पर या बालकनी में या किसी भी ऐसी जगह, खुली जगह पर चले जाएं जहां परिंदे आते हों। वहां जाकर इन दानों को इस नीयत से बखेर दें कि या अल्लाह, जैसे ये परिंदे तेरे रिस्क के मोहताज हैं, मैं भी तेरा मोहताज हूँ। आज उन परिंदों का पेट भर कर मैं तेरी मखलूक पर रहम कर रहा हूँ, तू मुझ पर और मेरे घर वालों पर रहम फरमा दे। जानते हैं इसमें क्या राज है? जब कोई परिंदा आसमान से उतरेगा और आपके हाथ से बखेरे हुए इन दानों में से एक दाना भी चुगेगा ना, तो उसकी जुबान से निकलने वाली तस्बीह आपके हक में दुआ बन जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आपने आज रात 21 दाने नहीं बांटे, बल्कि आपने अपने घर की गुर्बत, तंगी और बीमारियों को सदका कर दिया है। जैसे ही वो परिंदा दाना खाकर आसमान की तरफ परवाज करेगा, यकीन जानिए कि आपकी तकदीर का सितारा भी बुलंदियों की तरफ परवाज करना शुरू कर देगा। ये वो अमल है जो आपके रिस्क को मकनातीस बना देगा, जो दौलत और कामयाबी को आपकी तरफ खींच कर लाएगा। आज की रात आपकी जीत की रात है। आपने शब बारात की इस नायाब मौका को जाया नहीं होने दिया। आज मंगल का वो मुबारक दिन और बुध की दरमियानी रात और 15 शबान की वो रात आपकी गवाही बन चुकी है। मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि जो बंदा इतने यकीन और मोहब्बत से अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखता है, मेरा रब उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अब जाइए, फजर की नमाज अदा कीजिए और सुकून से सो जाइए, क्योंकि अब आपका मुकद्दमा अल्लाह ने सुन लिया है। कल की सुबह आपके लिए खुशियों की नई किरण लेकर आएगी इंशाअल्लाह। आपका कारोबार, आपकी इज्जत, आपकी औलाद और आपकी हर मुश्किल अब अल्लाह के जिम्मे है। अगर आपको लगता है कि आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो इस खैर को अपने तक ना रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि किसी और की जिंदगी भी संवर सके और इसका अजर आपको मिलता रहे। अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआएं कबूल मंजूर फरमाए, आपके घर को रिस्क की नेमतों से भर दे और आपको कभी किसी का मोहताज न होने दे। दुआओं में इस खाकसार को भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।